Okay, so today is I think it's 26th of August, and I am doing my first video vlog. This video is, however, this is just a trial video. I will tag it with the educational video, that is video of a particular chapter, carbon and its compounds, that I am doing for my kids, and I'll just attach this particular video with that. It's just for because the entire carbon and its compounds is taught in the classroom inside the board in a small room, and it may get pretty boring. So just a small stretch of the evening and the morning part of North Bengal University, which I would like to include in the video. And this is not just a pleasurous ride that I am having through. It is about carbon compounds also that I will simultaneously talk about while this will particularly go on. Okay, so I'll just take a loop from that side. So we are headed towards North Bengal University. North Bengal University is at our left. You can point the thing. You can see there is a forest kind of thing. This is the university's garden, and I will just take a loop and enter the university from the other side. So anyway, yeah, enjoy the view of the ride. Become one day, maybe a rider someday. But here I would just like to talk about carbon compounds, whichever things I will not talk in front of the camera, but in this bike are the basic things. You see, why are we studying this lengthy chapter of carbon compounds? And it's a very interesting chapter, but maximum of pen and paperwork. But you have to love chemistry to understand carbon compounds. See, life, if I say, life is formed of molecules. Obviously, life is formed of cells, but then life is also formed of molecules. Because inside the cells, the things that are there, the cell membrane, the cytoplasm, the mitochondria, the chloroplast, whatever is there, they are formed of molecules. And these molecules are organic molecules. Because why? Because they are associated to life. Organic, the term organic means pertaining to the life. Yeah. And okay, so yeah, the term organic means pertaining to life, and the molecules that are derived from the cells are organic molecules. Previously it was thought like, because they used to think that organic molecules can only be derived from the living organisms, but later on it was also shown that no, it can also be synthesized in the laboratory. You see, ammonia was from ammonium cyanate, NH4CNO. From ammonium cyanate, ammonia was the first compound, urea was the first compound which was organic and which was synthesized in the laboratory. Before that, there was vital force theory. Vital force theory says that these organic molecules can only exist in cells and cannot be synthesized in the laboratory. But however, later on it was synthesized in the laboratory also. Then what is organic chemistry today? Obviously, organic chemistry is the study of carbon and its compounds. The various aromatic and aliphatic compounds that are there that we will learn about or have learned about already. These organic compounds are formed of huge chains of carbon, as you have seen through this long 3-hour long video, that it is formed of long carbon chains: methane, propane, butane, methane, alkene, alkyne. There are saturated, there are unsaturated, there are cyclic, there are branched, but yeah, the important thing is that they can form chains. And as because the carbon being small, a small atom forms this chain, this particular chain forming capacity, and the chains remain also very stable because of the small size of the carbon. Then there is catenation of carbon, tetravalency of carbon, which allows it to form such a varied type of chains
and which again I would say allows it to form organic molecules or life-pertaining molecules, molecules like proteins, molecules like glucose, molecules like amino acids, various amino acids, molecules like lipids. All these kinds of molecules are molecules which forms the cells, and these molecules are formed of carbon and chains of carbon like you have seen in the video, and hence the branch of chemistry which deals with organic compounds is also known as organic chemistry. Carbon-rich compounds, if you study, it is also known as organic chemistry. So these things are there. I think, yeah, I will get the small gate open. This is North Bengal University. I am entering in the North Bengal University. Let's see the night version. I will also post the day version of it. Let's see the night version, and when I'll post the day version, and there also I'll talk about carbon-rich compounds definitely. We are planning to do it tomorrow morning, but this is the, we should come much more today. Now it's what? Now it's like 7:30. So if we come around 11, 11:30 or 12, it's really kind of scary feeling out here, because everything is so dumb, quiet, and you may find peace also. But whenever I enter university, anytime, may it be night, may it be day, I find peace. And it's a beautiful place, and it's more beautiful for me because I have spent the most beautiful years of my life here. However, I'm not here to talk about myself. I'm just interested in you making the enjoy the ride and also understand what organic compounds are. So see, life all around, plants all around. These plants are living beings. They have cells, they have tissues, and in these cells that have formed the tissues, there are organic molecules. Plants make glucose by photosynthesis, and we break down this glucose by respiration. So this is reaction of organic compounds, and they are all, trust me, formed by chains of carbon. Mainly cyclic chains. There are also straight chains, and cyclic chains are mainly prevalent in life-pertaining compounds or organic compounds. So yeah, that's the introductory thing that I should say, or maybe I would like to inform you that why this branch of chemistry is especially known as organic chemistry, because it pertains to life, the life compounds or the compounds of the life that has formed the cells, that are generally carbon compounds like the ones you have learned. Not basically the alkane, alkene or alkynes that are inside the cell, but there are glucose proteins which are also formed in the same way, like they are formed, like the chains of carbon, like the cyclic mode, the cyclic chains. So yeah, that's it. I hope I will ride a little bit more, and I hope you can enjoy the particular riding thing. I will show you how scary and how dark the part of the boys' hostel is. I would like to show you that. This is Arts building at your left, you can see. And yeah, this is the part of the boys' hostel. And now lights have been given here, but it's really अभी तो 2-3 इंसान दिख रहे हैं क्योंकि 7:30-8 ही बजा है, लेकिन ये रात में you can see in front how scary it is, and some people because of this the kind of nature that this particular place has, some people also spread rumors about the thing that they see ghosts and stuff. And yeah, this is the boys' hostel of North Bengal University, and don't see it only as a hostel because here a lot of lives have been made. That's not the boys' hostel in front of you and yeah, so that's it. Now we'll be heading towards, और मुझे फुचका खाना है क्योंकि मैंने देखा है रात में फुचका एंड आई लव फुचका. तो
I hope I will end my thing here. Wonderful. Okay, so now new topic. Functional groups. What are functional groups? Functional groups are atoms, comma, bonds or groups of atoms which when gets attached to a alkane chain changes the property, both chemical and physical, changes the property of the compound and brings a new property. Yes. So this is the definition of the functional groups. So as you can see, it is written here, atoms, bonds or groups of atoms which when gets attached to a alkane chain changes the property, both chemical and physical, of the compounds and brings a new property. You see, the carbon-based compounds that you are learning about doesn't end only with the discussion of alkanes, alkenes or alkynes. We also have to know about certain, what we can say is, you also have to know about the compounds containing functional groups, and they are separate classes of compounds. Yes, that's for sure. They are separate classes of compounds which forms this, and you have to understand about them. So what are these types of compounds and what are their chemical properties? Little bit of that also we have to learn in this particular portion of the video. So that's it. So let's begin with it. Okay, the first functional group is the halogen group. Halogen is denoted by bond X. Previously also I told you that atoms like chlorine, bromine, iodine, or rather I should say fluorine, chlorine, bromine, iodine. You see the example of chlorine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So one more electron if it gets, or if it shares from somewhere, then it will be complete. So it waits with one bond. That means I can do like this. Like chlorine, fluorine, bromine, iodine, all these are known as halogen compounds, and they are written as bond F, bond Br, bond I. So if with one bond they can enter inside the carbon chain. I will show you how they enter inside the carbon chain. Suppose for example C H H H C H H C H H and H is there. Suppose one of it doesn't carry H and a Cl enters. Then it becomes CH3 CH Cl CH3. This is the quantum structure. However, the Cl could be here also. If it would be so, then it would be
CH3, CH2, CH2Cl. Why? Because if I break it in this place, chlorine not being in this place, it comes in this place. Suppose for example, C, bond, and in this place there will be chlorine and the others will be H, and H. So it will be CH3, CH2, CH2Cl. Now in this way, with a single bond or capacity of having single bond, it can enter in the carbon chain from any side. From the middle, from the corner, from this corner, from that corner. So it can be like this. Suppose for example, methane, CH, H. In place of H, it enters as Cl. So it will be named as CH3Cl. Or 2 may enter. In this way here, if Cl enters, it will be then CH2Cl. This is entering of a other atom inside the alkane and changing its property. Now they have become this compound. They have become haloalkanes. Now haloalkanes are another set of compounds. If chlorine enters, they form haloalkanes. These are halogens which enters inside the carbon chain and forms haloalkanes. Let us see it in little bit of detail so that we can understand. Suppose for example, let's see in this case, suppose C, what can enter? In case of halogen I am teaching, what are the things that can enter? It is denoted as bond X. X can be equals to chlorine, bromine, iodine and fluorine. Now, if it has a single bond Cl, suppose for example, C, it will be H, it will be Cl, it will be H, it will be H. This will be called chloromethane. Naming them are simple. This will be called haloalkane, as I said, haloalkane. That's why chloromethane. Suppose for example, so this is what? CH3Cl. Suppose for example, C, H, here one Cl and here another Cl comes. Then it is known as dichloromethane. Now sir, why dichloro? Dichloro because 2 chlorine are there. Why methane? Because 1 carbon is there. Suppose for example, if I do C bonded to C and H and HCl, H. So it will be common structure is CH3, CH2, Cl in this way. So it will be chloromethane. In this way there can be chlorobutane. Suppose for example, CH3, CH3, you can notice here one bond is still left. If one H is there, so CH. If I give Cl here, so what it will be? Guess. 1, 2, 3, propane. So chloropropane. In that way it can be chlorobutane. Suppose for example, C, single bond, H, let us give here Cl, H, then it will be CH3, this will be CH3 bonded to CH, here एक बॉन्ड दिखा के नीचे Cl, CH2, CH3. This is chlorobutane.
ब्यूटेन। नाउ यू कैन आर्ग्यू विथ मी कि सर यहाँ पे क्लोरीन नहीं डाल के अपन तो इधर भी क्लोरीन डाल सकता है क्या? जरूर डाल सकते हो, यहाँ पे H डाल दो तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ का Cl चला जाएगा, यहाँ पे H2 हो जाएगा, यहाँ पे H2 हो जाएगा और तुमने यहाँ पे डाला है तो ये CH2Cl हो जाएगा यहाँ। तो ये भी क्लोरोब्यूटेन ही है, क्लोरीन घुसा है। तो अगर ब्रोमो घुसेगा तो ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोइथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोब्यूटेन, आयोडोमीथेन, आयोडोहेक्सेन, सपोज कोई बोला तुमको फ्लूरोहेक्सेन सपोज, तो तुमको क्या करना है? हेक्सेन ड्रॉ करना है, CH3 CH2 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 करके CH3 और किसी भी एक में फ्लूरो F घुसा देना है, बस फ्लूरोहेक्सेन। सो आई होप आप लोग समझे हो। तो आप लोग कॉपी में ओपन चेन एंड क्लोज चेन आप ये प्रैक्टिस करो। क्लोरो ब्यूटेन, एक बोर्ड में क्या हुआ है, आयोडोमीथेन, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। क्लोरो हेक्सेन प्रैक्टिस करो और बोथ ओपन चेन एंड कॉन्डेंस फॉर्म दोनों प्रैक्टिस करना। और क्या प्रैक्टिस करोगे? और ब्रोमो प्रोपेन प्रैक्टिस करो। और इस तरह से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि जितना लंबा होमोलोगस चेन पढ़े हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब में क्लोरो, ब्यूटो, आयोडो कुछ भी घुसा सकते हो, कहीं भी घुसा सकते हो और उसका स्ट्रक्चर ऐसे आप मॉडिफाई कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ यू हैव अंडरस्टूड द प्रीवियस पार्ट्स ऑफ द वीडियो देन इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये आपका हो गया हैलोजन। अब हैलोजन से शिफ्ट होके लेट अस स्टडी अबाउट द न्यू वन। रबिंग स्टार्ट करने से पहले पॉज करना है और सब कुछ कॉपी करना है और जो प्रैक्टिस करने बोला हूं वो प्रैक्टिस करना है। अब देखो नेक्स्ट है, अब से स्टार्ट होगा। अच्छा, एल्कोहल। अब ये एल्कोहल में इसको बोला जाता है बॉन्ड OH। एक्चुअली O का कितना है, अगर इसको समझोगे बॉन्ड OH को देखो तो O के दो साइड में दो बॉन्ड और H एक, तो एक बॉन्ड से वैकेंट है, क्योंकि O का अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखोगे, इधर से अगर एक हाइड्रोजन आके एक बॉन्ड फॉर्म करेगा तो यहाँ से सिर्फ O ऐड करेगा, तो ये OH फॉर्म होके एक ऐसा, तो ये है OH ग्रुप ऐसा। सो OH ग्रुप अगर घुसता है, सोचो मीथेन है, मीथेन में अगर OH ग्रुप घुस गया, CH यहाँ पे OH डाल दो, यहाँ पे H, तो इसका जो कॉन्डेंस फॉर्म है ये हो जाएगा CH3OH है। इसको हम लोग बोलेंगे मिथानॉल। क्यों मिथानॉल? मीथेन से आया है तो मीथेन तक लेना पड़ेगा, ये E हट जाएगा और E के जगह में आएगा ऑल। इधर देखो मिथान ऑल। तो अगर मुझे सेम वे में इथानॉल ड्रॉ करना है, C डबल बॉन्ड H, इसमें OH डाल देता हूँ, H, तो ये क्या हो गया CH2OH, और ये OH ऐसे मत दिखाओ, OH को अलग से ऐसे दिखाओ, OH बॉन्डेड टू CH3। इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे इथानॉल। इसको ऐसे भी लिख सकते थे CH3 CH2OH, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि अगर ये OH यहाँ पे नहीं होके अगर यहाँ पे होता OH तो ये हो जाता CH3 CH2OH। तो ये जनरली ऐसे ही बोला जाता है CH3 CH2OH इथानॉल। फिर आप अगर मिथानॉल और इथानॉल से शिफ्ट हो सकते हो तो आप प्रोपानॉल भी कर सकते हो, ब्यूटानॉल भी कर सकते हो। अगर मैं दिखाऊं आपको, जॉट डाउन करना है पॉज करके, जैसे ही मैं डस्टर हाथ में लेता हूं आप पॉज कर दो, जॉट डाउन करो। तो यहाँ पे देखो
क्या हो रहा है यहाँ पे 1 2 3 H H H सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आप OH डाल दो H H H H, तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2OH, ये आपका हो गया प्रोपानॉल है। तो फिर आप अगर ऐसे डाल दो CH H H CH H CH H, यहाँ पे OH डाल दिया, तो ये आपका सॉरी और एक लेना है मुझे CH H, यहाँ पे अगर OH डाल दिया तो ये CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 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 OH, ये आपका मीथ ईथ प्रोप्यूट, सिर्फ कार्बन गिनना है, मीथ है तो ये OH नहीं गिनना है, मीथ ईथ प्रोप्यूट, तो ये आपका हो गया ब्यूटानॉल। अब एक काम करो, कॉपी में मिथानॉल से स्टार्ट करके हेक्सानॉल का स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करो, बोथ ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड कंडेंस स्ट्रक्चर। सो ये हो गया आपका अल्कोहल। बाद में इसका सब प्रॉपर्टी बताऊंगा, पहले ये सीख लो। फिर अल्कोहल के बाद अभी आ जाएगा एल्डिहाइड। लिस्ट बना लेता हूँ क्या क्या सीखना है। पहले हैलोजन, उसके बाद आ गया आपका अल्कोहल, अभी आएगा आपका एल्डिहाइड, फिर आ जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कीटोन और नंबर 6 ईस्टर। ये 6 सीखना है, ये 6 फंक्शनल ग्रुप सीखना है। तो हम लोग ऑलरेडी हैलोजन और अल्कोहल सीख चुके हैं और आई होप आप लोग प्रैक्टिस भी कर चुके हो। तो शिफ्टिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट 4। ओके, नाउ एल्डिहाइड। Let's learn about aldehyde. Okay, so aldehydes. अब एल्डिहाइड ग्रुप थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे समझाता हूँ एल्डिहाइड ग्रुप क्या है। कुछ भी नहीं, अभी तक जितना भी ग्रुप सीखे सब बॉन्ड Cl बॉन्ड Br ऐसे कुछ रहा था, या बॉन्ड OH ऐसे कुछ रहा था, इसमें कार्बन नहीं था। अब देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप ऐसा है, खुद ग्रुप के अंदर कार्बन है, मतलब ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और यहां से एक बॉन्ड खुल गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसको अगर मैं ये सारे बॉन्ड्स ना दिखाऊं तो ये हो गया CHO सिंगल बॉन्ड, ऐसे मतलब दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, बॉन्ड CHO बॉन्ड CHO। तो अब क्या है CH H H, यहाँ पे CHO अगर डाल दोगे तो ये मिथ हो गया, ये इथ हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा इथानेल। क्यों? एल एल्डिहाइड का एल। अब अगर आप इसको लिखोगे तो ये CH3CHO है, इथानल। अगर आप ऐसे करोगे CHO H H H H H, तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CHO। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा मीथ ईथ प्रोपानेल। अगर आप करोगे CH3 CH2 CH2 CHO, तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटानेल। इस तरह से आप एक काम करो, इस बार आप मिथानेल से हेक्सानेल तक ड्रॉ कर डालो।
बोथ ओपन चेन एंड क्लोज चेन, बोथ ओपन चेन एंड क्लोज चेन। अब याद रहे जब आप अल्कोहल एल्डिहाइड का ओपन चेन करोगे तो एल्डिहाइड का ओपन चेन ऐसे ड्रॉ करना, जैसे कि इथानॉल ड्रॉ कर रहे हो, इथानॉल ड्रॉ कर रहे हो तो सी एच 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 सी डबल बॉन्ड ओ एच, और जो फंक्शनल ग्रुप का जो पार्ट है ना उसको दूसरे कलर से ऐसा करो ताकि आपको समझ में आए कि ये फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। जैसे आपको ये ड्रॉ करना है तो बस इसका ओपन चेन प्रोपानॉल का क्या कर दो, इसका ओपन चेन कर दो, सी डबल बॉन्ड एच, सी एच ओ मत लिखो। आपका जब कंडेंस्ड होगा तब सी एच ओ लिखो, जब कंडेंस्ड होगा तब सी एच ओ लिखो, यहाँ पे सी एच ओ लिखो, ठीक है। ये ब्यूटानॉल का जब करोगे, ब्यूटानॉल का कैसे करना है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ब्यूटानॉल का कैसे करना है। सी 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 और लास्ट में सी डबल बॉन्ड एच, तो ये हो गया आपका सी एच ओ पार्ट, और यहाँ पे आप डाल दो एच 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 एच, तो ये आपका हो गया ये CH3 CH2 CH2 CHO, ये आपका हो गया ब्यूटानॉल। तो आप प्रैक्टिस करो मिथानॉल से हेक्सानॉल। हाँ, अब मिथानॉल के बारे में थोड़ा सा बात करना है कि मिथानॉल कैसे करोगे। मिथानॉल देख लो, मिथानॉल क्या है। अगर आप मिथानॉल के बारे में कर रहे हो, मिथानॉल, तो मिथानॉल ऐसा है C बॉन्ड बॉन्ड H H H ला, यहाँ पे अगर मैं CHO दे दूं तो ये तो इथानॉल हो गया, तो मिथानॉल कैसे करूं? ओके तो गलत हो गया, तो मिथानॉल कैसे करूं? इसका मतलब एक कार्बन से अगर मिथानॉल है और एक कार्बन खुद फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है तो आप क्या करो, ये लिखो और यहाँ पे H डालो, तो ये एक कार्बन का बन गया और फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ये आपका हो गया मिथानॉल। मतलब इसको लिखोगे HCHO ऐसे, ये है इसका कॉन्वेंट स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका मिथानॉल। तो ब्यूटानॉल तक दिखा दिया, पेंटानॉल और हेक्सानॉल करना है और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये हो गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड ग्रुप भी डन। ये एल्डिहाइड ग्रुप कैसा है, और अब आएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इन सब के बारे में डिटेल्स में बात करूंगा कि कैसे प्रॉपर्टी चेंज होता है क्या नहीं, ये पहले ये तो सीखो। ओके, फिर उसके बाद आपका आ गया, फिर उसके बाद आपका आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H था और यहाँ से घुस रहा था, तो CHO ऐसा था, तो ये था आपका एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये H नहीं होगा, यहाँ पे OH होगा, इसका मतलब ये यहाँ से चेन में घुसेगा, तो ये COOH, तो यानी ये कैसा है, अगर आप CHHH और COOH डाल देते हो तो आपका हो गया CH3 COOH। इसको हम लोगों ने मीथ इथ इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड बोलते हैं इसको, या फिर कॉमनली इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। तो सर मिथानोइक एसिड कैसा होगा, देखते हैं। मिथानोइक एसिड तो पहला मेंबर होना चाहिए, कुछ भी नहीं है मिथानोइक एसिड में। आप C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे आप एक H डालो, एक ही कार्बन है तो मीथ हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखो क्या है, COOH ऐसा, ये तो मिथानोइक एसिड, तो इसका मतलब है ये HCOOH है, HCOOH। इसका दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड। ओके, अगर आप ऐसे करोगे CH3 CH2 COOH, ये आपका हो जाएगा प्रोपानोइक एसिड। अब अगर और एक आपको कार्बन बनाना है तो CH3 CH2 CH2 COOH, तो ये आपका हो गया ब्यूटानोइक एसिड।
ऐसे ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। इसका ओपन चेन भी ड्रॉ करने का कोशिश करो और क्लोज चेन भी ड्रॉ करने का कोशिश करो, एंड सेम वे में जैसे मैंने एल्डिहाइड में दिखाया था। पहले ओपन चेन करो ऐसे CH C डबल बॉन्ड OH, और क्या करो जहां पे ये है इसको ऐसे मार्क कर डालो कि ये अपना फंक्शन ग्रुप है। तो मीथ ईथ प्रो ब्यूट, ये हो गया ब्यूटानोइक एसिड। तो इस तरह से क्या करो, मिथानोइक एसिड से लेके डायरेक्ट हेक्सानोइक एसिड तक प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करो? बोथ ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड कर्नेल स्ट्रक्चर, बोथ प्रैक्टिस करो, तभी अच्छे से आएगा। तो ये था आपके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर चलते हैं कीटोन के तरफ। चलो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कीटोन्स। पॉज करके उतारना है, बार बार तो नहीं बोलूंगा, पॉज करना है और सब उतारना है, और जो काम दिया है वो भी करना है। मुझे पता है कि वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन those who can keep patience and see everything, they will really learn things. अब देखो कीटोन में क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, ये है कीटोन, ऐसा वाला ग्रुप। इट विल एंटर इनसाइड द कार्बन चेन। तो अगर आप यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आप CH3 डालते हो, तो यहाँ पे आप CH3 डालते हो, तो ये क्या हो गया? मीथ ईथ प्रोपान, और क्योंकि कीटोन है तो कीटोन का ओन ONE, प्रोपानोन। अगर आप ऐसे डालते हो C डबल बॉन्ड O, इस साइड में एक CH2 फिर CH3 डालते हो, और यहाँ पे एक CH3 डालते हो, मीथ ईथ प्रो ब्यूटानोन। अगर आप ऐसे करते हो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे CH3 डाल के CH2, और यहाँ पे CH2 डाल के CH3, तो मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंटानोन। तो ऐसे करके प्रोपानोन, ब्यूटानोन, पेंटानोन, ये सारे स्ट्रक्चर्स कीटोन्स के हैं। तो यहाँ पे आप एक का क्या काम करो, पहले एक चीज समझ लो सर, इथानोन और मिथानोन आपने नहीं बोला, क्योंकि ये लोग होता ही नहीं है, डजंट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि सपोज सोचो आपको इथानोन बनाना है। इथानोन बनाना मतलब 2 कार्बन, तो इसके साथ एक कार्बन यहाँ पे CH3 दे दिया, तो 2 कार्बन कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ पे H दे दोगे, तो यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है, ये CHO ग्रुप फॉर्म हो रहा है। मतलब ये ऐसा है CH3 CHO, इस साइड से देखो CH3 CHO, तो ये तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड बन जाता है। तो 2 कार्बन से इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ कीटोन, क्योंकि कीटोन में दोनों साइड में C होना चाहिए। ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, C यहाँ पे भी कार्बन आना पड़ेगा, यहाँ पे भी कार्बन आना पड़ेगा, इसको ऐसे रहना पड़ेगा, तो ये कीटोन है। इसको ऐसे रहना पड़ेगा, तो ये कीटोन है। इसको ऐसे रहना पड़ेगा, तो ये पूरा कंपाउंड कीटोन है। यहाँ पे अगर आप कहीं से भी H ला देते हो, यहाँ से अगर कहीं से भी आप H बता देते हो यहाँ पे, तो ये तो आपका एल्डिहाइड का हो गया। अब यहाँ पे छोड़ के कार्बन यहाँ पे अगर H बता देते हो, तो ये तो आपका एल्डिहाइड हो गया। दिस इज अबाउट योर एल्डिहाइड। सो कीटोन में इथानोन तो होगा ही नहीं, और आपको समझ में आ रहा होगा अभी कि मिथानोन भी नहीं होगा। डाल दोगे मिथानोन करने के लिए, यहाँ पे अगर H डाल दोगे तो ये तो HCHO है। ये क्या है? अभी तो सीखा। ये एक CHO अगर मैं ये पकड़ूं फंक्शनल ग्रुप, तो HCHO मतलब ये फॉर्मल्डिहाइड है, या फिर मिथानेल है। देखो मिथ, ये CHO ग्रुप है, तो मिथानेल।
aldehyde. So I hope you have understood. I will talk a little bit more about these differences so that you can understand even more. So I have discussed about the fifth one. Sixth one I will discuss later on when I will discuss about the reactions. Anyway, so this is it. This is about the functional groups. I will talk a little bit more about the functional groups so that things become clear. The purpose of making this video is to not to teach in shortcut, and that's the reason why this video is so much lengthy, because I am not taking any shortcut to make you understand, and you have to understand the way it is. Now it is very difficult to even write a simple reaction in carbon compounds. So देखो तुमने क्या सीखा, तुमने हैलोजन सीखा, तुमने अल्कोहल सीखा, you have understood about aldehyde, you have understood about carboxylic acid, and you have understood about ketones. You have understood, I hope you have also practiced their open chain and closed structure. Now you see, अगर आप हैलोजन में देखोगे, अगर मैं एक सिंपल सा कंपाउंड ड्रॉ करूंगा CH3 CH2 CH2Cl, जो पहले भी किया है, जिसका ओपन फॉर्म ये है CHHH CHH CHH Cl, जिसका ओपन फॉर्म ये है CH3 CH2 CH2Cl. हमेशा याद रखना क्लोरीन एक तरफ से ही घुसेगा, मतलब इस तरफ से घुसेगा या इस तरफ से या नीचे से, यहाँ पे भी आ सकता है, जैसे आपने देखा है पहले, H हटा के यहाँ पे भी आ सकता है, मल्टीपल भी आ सकता है, लेकिन मेरा वो बात नहीं है, वो तो नोमेनक्लेचर के वक्त सीख ही जाएंगे अच्छे से. लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि क्लोरीन किसी भी एक एंड से घुस सकता है, किसी भी एक एंड से. आप लोग अल्कोहल को भी देख लो, CH3 CHO, CH3 CH2OH, इसको अगर तोड़ोगे तो ये ऐसा है CHHH CH2 ये OH, या फिर आप लिख रहे हो CH3OH, या फिर आप लिख रहे हो CH3 CH2 CH2OH. तो आप यहाँ पे देखो, ये तो आपका मीथ इथानॉल हो गया, ये आपका मिथानॉल हो गया, ये आपका प्रोपानॉल हो गया, ये प्रोपानॉल है, ये आपका मिथानॉल है. अब देखो इसमें क्या है, CHHH CHH CHH तो ये OH भी एक ही तरफ से घुस रहा है, अरे यहाँ से भी घुस सकता है, यहाँ से भी घुस सकता है, यहाँ से भी घुस सकता है, लेकिन हाँ कॉर्नर से. इसमें तो कार्बन का कोई चांस ही नहीं है, तो ये कहीं से भी आप कार्बन के साथ, मतलब फंक्शनल ग्रुप के अंदर ये तो बॉन्ड X, ये बॉन्ड OH, तो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन का कोई सीन ही नहीं है इन तीनों के जैसा, तो इसीलिए ये कहीं से भी घुस सकता है. लेकिन अगर मैं बोलूं व्हिच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ क्लोरोएल्केन, सपोज मैं आपको बोला कि व्हिच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ क्लोरोएल्केन, फर्स्ट मेंबर कौन होगा? आप C के साथ अगर H अगर मीथेन फर्स्ट मेंबर है, इसके साथ Cl दे दो तो CH3Cl, क्लोरोमीथेन यही फर्स्ट मेंबर होगा. अगर मैं बोलूं फ्लूरोएल्केन का कौन होगा? फ्लूरोएल्केन का मतलब क्या है? क्लोरीन की जगह फ्लोरीन रहेगा, ऐसे F, तो CH3F, तो क्लोरो की जगह मैं यहाँ पे फ्लूरो बोलूंगा, फ्लूरो, तो फ्लूरोमीथेन पहला, ब्रोमोमीथेन पहला. सो आई होप ये क्लोरोएल्केन पहला कंपाउंड है और फर्स्ट होमोलॉग है, आई होप यू अंडरस्टैंड. उसी तरह ब्रोमो आयोडो किसी कोई का भी ले लो, तो क्लोरोमीथेन जैसा आयोडोमीथेन, ब्रोमोमीथेन या फ्लूरोमीथेन, लेकिन मीथेन फर्स्ट मेंबर है, ये एक ही. फिर उसके बाद तो आप डबल कार्बन ले सकते हो, उसमें घुसा सकते हो या उसमें Cl घुसा सकते हो, ठीक है. तब उसके सेकंड मेंबर कौन होगा? अगर कोई बोलेगा कि क्लोरोएल्केन का सेकंड मेंबर, क्लोरोएल्केन का सेकंड मेंबर कौन है, तो CH3 ऑब्वियसली यू विल टेक CH2Cl, मतलब आप दो कार्बन लिंक कराओगे तो फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर तक आएगा. फर्स्ट मेंबर में एक कार्बन था, तो H ये Cl, तो ये हुआ ना CH3 CH2Cl.
तो ये आपका हो गया सेकेंड मेंबर। सो कोई अगर तुमको पूछेगा कि अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर कौन है, चलो देखते हैं अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर कौन है। आई होप कि जो लोग इंटेलिजेंट है वो लोग को समझ में आ गया होगा कि मिथानॉल फर्स्ट मेंबर होना चाहिए, ऑब्वियसली सो। अगर आप देख रहे हो तो मिथानॉल फर्स्ट मेंबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे कर रहे हो CHHH, यहाँ पे H हटा के अगर OH घुसा रहे हो तो CH3OH, और अगर आप CCHH यहाँ पे OH घुसा रहे हो HHH, तो ये हो गया आपका CH3CH2OH। तो ये हो गया आपका पहला मेंबर, ये हो गया आपका सेकंड मेंबर। थर्ड मेंबर यानी प्रोपानॉल, ये आपका मिथानॉल है फर्स्ट मेंबर अल्कोहल का, ये आपका इथानॉल है फर्स्ट मेंबर अल्कोहल का। तो अगर मैं अब एल्डिहाइड में शिफ्ट करूं तो एल्डिहाइड में भी वही, अगर आप C डबल बॉन्ड OH लो तो ये अब मैं एल्डिहाइड का दिखा रहा हूं फर्स्ट मेंबर, एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर C अगर ऐसे OH, यहाँ पे अगर आप CH3 डाल देते हो तो ये तो आपका CH3CHO हो गया, ये आपका हो गया मिथ ईथ इथानल, इथान एल, ये एल का एल, इथानल, ये तो आपका हो गया। लेकिन ये फर्स्ट मेंबर नहीं है, ये गलती हो जाएगा फर्स्ट मेंबर बोलने से। तो C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आप एक H डालो तो ये देखो HCHO हो गया है, तो ये आपका हो गया मिथानल, जिसको फॉर्मल्डिहाइड भी बोला जाता है। ठीक है, इसका दूसरा कॉमन नाम है फॉर्मल्डिहाइड, है फॉर्मल्डिहाइड भी बोला जाता है। तो ये है फर्स्ट मेंबर, ये यहाँ पे ये है अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर, ये एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर, ये है अल्कोहल का सेकंड मेंबर, ये एल्डिहाइड का सेकंड मेंबर। अब तो अब आपने कॉपी में किया ही होगा, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, वो लोग कॉन्सिक्वेंट मेंबर्स हैं, होमोलोगस सीरीज फॉर्म करते हैं। जैसे एल्केन में होमोलोगस सीरीज होता है, एल्कीन में होता है, एल्काइन में होता है, हैलोजन में भी होमोलोगस सीरीज होता है। अल्कोहल में भी आप मिथानॉल से इथानॉल जाओगे, इथानॉल से प्रोपानॉल जाओगे, प्रोपानॉल से ब्यूटानॉल जाओगे, ब्यूटानॉल से हेक्सानॉल जाओगे, हेक्सानॉल से आगे बढ़ोगे तो ये भी होमोलोगस सीरीज है और सेम होमोलोगस सीरीज का रूल फॉलो करके जाता है। तो ये तो आपका हो गया एल्डिहाइड का और अल्कोहल का और हैलोजन का। तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन का फर्स्ट मेंबर देखते हैं। आपने अब एक चीज नोटिस किया होगा कि देखो CaO एक बॉन्ड X हो, बॉन्ड OH हो या बॉन्ड CH हो, सब कोई कॉर्नर से घुस रहा है। बॉन्ड OH हो, बॉन्ड X हो या बॉन्ड CH हो, एल्डिहाइड हो, हैलोजन हो या अल्कोहल हो, सब कोई कोने से घुस रहा है। आपने अगर प्रैक्टिस किया है तो ही आपको समझ में आएगा। मैंने जहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए बोला है वहां पे अगर प्रैक्टिस किया है वीडियो पॉज करके तो ही आपको समझ में आएगा कि ये लोग खाली कोने से घुसता है। अब दूसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी कोने से ही घुसता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दूसरा जो कार्बोक्सिल ये भी कौन से घुसता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, C डबल बॉन्ड OH, मतलब बॉन्ड COOH ऐसे लिखते हैं, है ना। तो आपका क्या होगा CH3 CH2 CH2 COOH। तो इसको मीथ ईथ प्रोप ब्यूटानोइक एसिड, इसका मतलब जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप में है उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे CHHH, ये डेफिनेटली फर्स्ट मेंबर तो है नहीं, फर्स्ट मेंबर को ढूंढते हैं। CH, तो यहाँ पे अगर आप COOH डालोगे तो ये बन जाएगा CH3COOH। तो ये एसिडिक एसिड है या इसको इथानोइक एसिड भी कहते हो, है ना। मीथ ईथ, तो इथानोइक एसिड भी कहा जाता है इसको, है ना। तो इसको अगर इथानोइक एसिड कह रहे हो तो ये फर्स्ट मेंबर अगर सोच रहे हो तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट मेंबर आई होप ये होना चाहिए ना, C डबल बॉन्डेड टू O बॉन्डेड टू OH, और यहाँ पे अगर आप एक H घुसाते हो तो
तो ये देखो, ये आपका COOH ग्रुप है ना, उसके साथ एक H, इसका मतलब HCOOH, जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। एंड स्टिंग में जो रहता है ये, इसका नाम है मिथानोइक एसिड है, मिथानोइक एसिड। ये आपका फर्स्ट मेंबर है, ये वाला आपका फर्स्ट मेंबर है। सो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का भी फर्स्ट मेंबर आप सीखे। इतना देर तक मैं बोल रहा था कि कोने से घुसता है, कोने से, चेन में एक एंड से घुस रहा है। आप OH ले लो, X ले लो, हाँ आप OH ले लो, X ले लो, CHO ले लो, कोई किसी चीज को भी ले लो, ये लोग कोने से एक एंड से घुस रहा है। अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस किया है तो आप लोग देखोगे कि एक एंड से घुस रहा है। लेकिन ये कीटोन एक ऐसा अनोखा फंक्शनल ग्रुप है जो बीच में रहता है, कभी कोने से नहीं घुसता। वो अगर कोने से घुसेगा तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। देखो मैं दिखाता हूं, जैसे कीटोन में क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर आप सोचोगे कि नहीं मुझे एक साइड से C H H H C H H H, तो ये हुआ ना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपानोन, है ना, प्रोपानोन। अगर आप सोचोगे मुझे यहाँ पे C नहीं डालना, मुझे यहाँ पे H डालना है, डालो C डबल बॉन्ड O CH3 H डालो। देखो ये क्या बन गया, CH3 और इस साइड से CHO, मतलब आप लिख सकते हो CH3 CHO। ये क्या है, मीथ ईथ, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इथानॉल हो गया ना। तो इसका मतलब ये है, अब ना तो इस साइड से H दे सकते हो, अब इस साइड से H दे सकते हो, आपको यहाँ पे C ही रखना पड़ेगा। तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप किसी भी साइड में H घुसाने का कोशिश करोगे तो एल्डिहाइड, यहाँ पे H घुसाने की कोशिश करो तो देखो ना क्या हो जा रहा है, CHO नहीं हो जा रहा है, CH3 CHO, तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा। मतलब इसका मतलब है यहाँ पे कार्बन को मांगता ही मांगता है। इसका मतलब फर्स्ट मेंबर कौन हुआ, एनी गेसेस? CH3C CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यही फर्स्ट मेंबर है, क्योंकि इसके ऊपर वाला मेंबर तो एल्डिहाइड बन जा रहा है। तो यानी प्रोपानॉन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैड ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि कीटोन हमेशा बीच से घुसता है। Yes, so this is all about the functional groups. Now after functional groups, I will, यहाँ पे छोटा सा एक बात बोल रहा हूँ। अगर हेलोजन ग्रुप है तो हेलो एल्केन नाम होता है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोहेक्सेन, ऐसे। अगर एल्कोहल ग्रुप है तो प्रोपानॉल, हेक्सानॉल, मिथानॉल, इथानॉल, ब्यूटानॉल। अगर एल्डिहाइड तो है तो मिथानेल, इथानेल, प्रोपानेल, ब्यूटानेल, एल बैठता है लास्ट में। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो बैठता है वो है ओइक एसिड, ओइक एसिड। जैसे मिथानोइक एसिड है तो मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड तो इथान ओइक एसिड, ब्यूटान ओइक एसिड। अगर ऐसा है कि CH3 CH2 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 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 और COOH 1 2 3 4 5 6, तो यानी कितना हो गया मिला के, इसका मिला के 1 2 3 4 5 6। देखो 5 फंक्शनल ग्रुप छोड़ के मत गिनो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी गिनेगा, ठीक है। जैसे अल्कोहल में अगर गुनते थे CH3 CH2 CH2OH, तो ये फंक्शनल ग्रुप छोड़ के गिनते थे 3 कार्बन। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है ही नहीं तो क्यों गिनूं, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो ये भी गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका हेक्सान ओइक एसिड। ये ओइक एसिड, ये सफिक्स जो है ये बैठता है, और कीटोन के लिए OA, तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा। और चाहे तो लिख लो, हेलोजन के लिए हेलो एल्केन, हेलोमीथेन, हेलोप्रोपेन, क्लोरोमीथेन, क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोपिटेन,
अल्कोहल के लिए एल्कानॉल, एल्कानॉल, मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल। एल्डिहाइड के लिए एल्कानेल। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एल्कानोइक एसिड और कीटोन के लिए एल्कानोन, एल्कानोन। मतलब ये पोर्शन, ये सफिक्स पोर्शन याद रखो कौन सा में क्या। प्रैक्टिस करो, बार बार नाम लिखो, जैसा मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बताया है उसमें नाम चेक करो, नाम लिखो तो आसानी से हो जाएगा। सो दैट्स इट अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स।